খাস কামরা প্রধান, জাহাপনা হেরেমে নেই, দেখা হবে না, আপনি পরে আসুন। আমি আপনার কাছে এসেছি। আমার যেতে হবে, কোনো জরুরি কিছু? এলিনের কাছে যাচ্ছেন? আইবিকে হাতুন, আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি। পালাতে চাই। শাহজাদা, এসো নোরা। কিভাবে আমায় জাদু করেছো বলো? নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। তুমি সামনে এলেই বুকটা কাঁপতে শুরু করে। আমি শুধুই আপনার শাহজাদা, আপনার দাসী। আপনার জন্যই জন্মেছি। মুস্তাফার আচরণের কথা ভাবছেন? খুব খারাপ হয়েছে। আশ্চর্য লাগছে, কেমন অভদ্র হয়েছে। কিসের কথা বলছো তুমি? শুনলাম ও বলেছে কাল নাকি জুমার নামাজ পড়তে যাবে না। কে বলেছে তোমাকে এসব? হেরেমে সবাই বলা বলি করছে। আমি এটা চিন্তাও করতে পারি না। মুস্তাফা কখনোই এই বেয়াদবি করবে না। আমিও ভাবতে পারছি না, কিন্তু কেউ যদি কুপরামর্শ দেয় তাহলে। আমি তো ভাবতেই ভয় পাচ্ছি। এ তো প্রকাশ্যে আপনার বিরোধিতা করার মতো। শাহজাদি, মাহিদেবরান, গুলফাম, এসে খুব ভালো করেছো। আমার একা একা অস্থির লাগছিল। শাহজাদি, বাচ্চারা কেমন আছে? ওদের খুব মনে পড়ে। ওরা দুজনই খুব ভালো আছে। পাশাকে দেখছি না। প্রাসাদে গেছে মনে হয়। না, যাননি। দেখা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আজকে যাননি। বোধ হয় কাজে ব্যস্ত। এসে পড়বে। এসো না। আমি বাচ্চাদের দেখে আসছি। কি হয়েছে মাহিদেবরান? কি এমন বলবি ইব্রাহিমকে? পাশা, নাসর এফেন্দির শরীর ভালো না। চিন্তা করো না, খবর পেয়েছি। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। খারাপ লাগছে খুব। তুমি এসব কথা ভেবো না, আমি একটা উপায় বের করব। ছাড়তে মন চাইছে না। আজ না গেলে হয় না?
আর কিছু খাবেন না? যথেষ্ট খেয়েছি। আইবিগে হাতুন এসেছেন, আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন। আসতে দাও। জাহাপনা, সুলতানা, ক্ষমা করবেন, অসময় বিরক্ত করছি। অসুবিধা নেই, কেন এসেছো বলো। জানি আপনি নিষেধ করবেন, তবু একান্ত অনুরোধ জাহাপনা, আমাকে যেতে দিন। বাবার কাছে ফিরে যেতে চাই। আইবিগে কেন যাবে? আমাদের সাথে থাকো। পরে আবার আসবো সুলতানা, এখন যেতে দিন। খুব ইচ্ছে করছে বাবাকে দেখতে। ঠিক আছে, এত করে যখন বলছো তখন আর আটকাবো না, শীঘ্রই তোমার যাবার ব্যবস্থা করছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জাহাপনা। এখন যেতে পারো। মুস্তাফা বড় হয়ে গেছে, তুমি অযথা চিন্তা করো না, ও অবশ্যই যাবে ইনশাআল্লাহ। এখন কোথায় সে? 2 দিন ধরে কামরায়। একটা দাসীকে এতই ভালো লেগে গেছে ওনার, ওকে নিয়েই আছেন। সময় কত দ্রুত কেটে যায়। শাহজাদি, ইব্রাহিম, সুস্বাগতম। সুস্বাগতম। পাশা কোথায় ছিলেন? কখন থেকে আপনাকে খুঁজছি। কি হয়েছে, আবার কোনো ঝামেলা? মুস্তাফাকে নিয়ে কথা বলতে এসেছি। জানেন তো, ও শুধু আপনার কথাই শোনে। এবার একটু থামবে তুমি, মাত্রাচ্ছি। কেন জনাব, আরো চাই? আগা, আমার আরো একটা বোতল চাই। কি অবস্থা করেছ দেখো, তুমি হাঁটতেও পারছো না ঠিক মতো। কি দেখো? এখনই দেখাচ্ছি কিভাবে হাঁটতে হয়, দেখো। এই তো। ওঠো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেই। না না, ওই বাড়িতে আমি যাব না, ওখানে আমার জায়গা নেই। চলো। ছাড়ুন জনাব, আমি যাব না। আপনি শান্ত হন সুলতানা, আমি কাল সকালে গিয়ে কথা বলবো শাহজাদার সাথে। যদি কথা না শুনে? तुम कौन हो नूरा? कहां से आई हो यहां? कहां पैदा हुई? कहां उम्र गुजारी? और अचानक कैसे आ गई मेरे सामने? किसने भेजा है तुम्हें? या मेरे रब ने कोई तोहफा भेजा है मेरे लिए? मैं तुम्हारा नाम रखना चाहता हूं। खुशी होगी। आज के बाद से तुम्हारा नाम है अफसून। अफसून का मतलब क्या है? यानी सहर तराज, मतलब जादू। एक जादू हो तुम, हसीन। आज नहीं तो कल।
वो तुम्हारा एक नाम रखेगा। उस वक्त उसे ये कहना कि मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ तुम्हारी तरह। उसे बताना तुम जिस पर ईमान रखते हो मैं उस पर ईमान लाना चाहती हूँ, और तुम जिस किबले की तरफ सर झुकाते हो उसी किबले की तरफ सर झुकाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ। नाम पसंद नहीं आया तुम्हें? पसंद आया, बहुत ज्यादा। शहजादे, आप जिस पर ईमान रखते हैं मैं भी उस पर ईमान लाना चाहती हूँ। आप जिस तरफ सर झुकाते हैं मैं भी उसी तरफ सर झुकाना चाहती हूँ। मैं आपके अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ। मुसलमान होना चाहती हो? अफसों अफसों। निगार खातून, निगार खातून। निगार खातून। नहीं होगी, वो किसी से मिलने गई होगी। क्या कह रहे हो मतरक जी, किससे मिलने? मुकर्रब खास। इससे बाजार में मुलाकात हुई, इसे इस हालत में देखा तो मैं घर ले आया। या अल्लाह, मैं संभाल लूंगी इन्हें वाली साहब, शुक्रिया। कहां से आ रही हो तुम इस वक्त? महल गई हुई थी मैं, कुछ काम थे वहां। अच्छा, क्या आपके पास कोई जवाब है मेरे लिए? कौन फैसले करता है हमारी तकदीरों के? क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक इंसाफ परवर बादशाह हूं और मैं कभी भी गलती नहीं करता? खुर्रम सुल्तान को रोकते क्यों नहीं आप? क्यों उनके फैसलों की भेंट चढ़ा रहे हैं आप हमें? मैं गुस्से में आ गया था बागली। मैं अपने ही खून मुस्तफा को नुकसान पहुंचाने वाला था। डर गया था अपने गुस्से से। मैं अपने वालिद की तरह अपनी ही औलाद को जहर नहीं देना चाहता, बिल्कुल। مصطفى عندي شرط شاويرة قد صاري دوامتك. अपने साथ हमेशा दूसरा हथियार भी रखा करो मुस्तफा। तुम्हें जवान और ताकतवर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बाज औकात तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख भी होता है। मजबूत और जवान होते हुए तुम अपनी मासूमियत खो रहे हो। एक शादीशुदा औरत को रात देर से क्यों भेजते हो? हरम में दूसरी कनीजें नहीं है क्या? निगार काल्फा को इतनी देर से क्यों छुट्टी दी तुमने? हाय मुकर्रब खास, ये भला कैसे हो सकता है? देर से भेजना कैसा? निगार काल्फा तो कल महल में ही नहीं आई।
क्या यकीन है तुम्हें सुम्बुल? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं सुबह एक चक्कर लगाया था, ताया खातून से मिलने आई थी, बाद में चली गई इसलिए कि छुट्टी थी कल उसकी। शहजादे मुस्तफा को खबर दो, मालूम है जुमे की नमाज के लिए जाना है आज। जी जनाब। अफसोस। सुबह बखैर शहजादे। तुम्हें भी जल्दी उठ गई, नींद नहीं आई क्या? देखती रही आपको, चेहरा तकती रही, जब भी आंखें बंद हो तो सामने आपको देखना चाहती हूँ। मोहतरम शहजादे। क्या बात है सुम्बुल आगा? जुम्मे की नमाज के लिए आपका इंतजार हो रहा है शहजादे। पाशा। बाली साहब, शहजादे मुस्तफा नहीं आए क्या अब तक? सुम्बुल आगा से बुलवाया है उन्हें, आने वाले होंगे। मतरकची से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ पाशा। कल रात वो फिर बाजार में पड़ा था, मैं उसे उठाकर घर ले गया। वहां देखा कि निगार खातून घर में नहीं थी। बाद में आई तो बताया कि महल से आ रही हूं। मैंने गुस्सा किया कि शादीशुदा औरत को क्यों देर से भेजते हो, तो सुम्बुल ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा खून जम गया। क्या बात थी वो कल सारा दिन छुट्टी पर थी। उसने मुझसे झूठ बोला। यकीनन कोई ना कोई मजबूरी होगी। अलावा इसके हम इस मसले में ना पड़े तो हमारे लिए बेहतर होगा। पाशा मोहतरम। शहजादे मुस्तफा कहाँ रह गए सुम्बुल आगा? मेरे आका। माल कोचू, नमाज जुमा के लिए तैयार हैं आका। मुस्तफा नहीं जाएगा नमाज के लिए? मोहतरम पाशा, हाँ आप इजाजत दें तो फालदे सुल्तान से जाकर कहता हूँ, क्योंकि वो किसी और की बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। मैं जाकर देखता हूँ सुम्बुल आगा। आप कैसे जाएंगे पाशा, कतई मना है। है मेरे अल्लाह, रहम फरमा मेरे मालिक। पाशा, पाशा मोहतरम सुनिए तो सही। मलिका, क्या अब तक कोई खबर नहीं मिली? शहजादे मुस्तफा अब तक कमरे में बंद हैं। क्या इब्राहिम पाशा पहुंच गए? पहुंच गए, लेकिन क्या हुआ ये नहीं मालूम। या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को बचाना। पागल हो गया ये लड़का, जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इब्राहिम पाशा, तुम जाओ बाहर।
उठो, चलो, तैयार हो, देर हो रही है। आप मुझे इस तरह हुक्म नहीं दे सकते। जरूरत पड़ने पर दे सकता हूं शहजादे। वो क्यों, जानते हो तुम? तुम्हें हर तरह की शर से बचाने की कसम खाई है मैंने, सिर्फ तुम्हारी खातिर। क्या कर रही हो तुम अभी तक यहाँ पर? क्या हो गया आका? कयामत आ गई है, मत पूछो। चलो जाओ साइड में। और सुनो, यहाँ जो कुछ भी हुआ किसी से जिक्र नहीं करना। अगर किसी से कुछ कहा तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ तुम्हारी जबान काट दूंगा मैं। चलो अब जाओ। पहनो इसे फौरन, चलना ही होगा। आप जाइए बादशाह, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें आना पड़ेगा मुस्तफा, उठो फौरन। बादशाह, तुमसे कह रहा हूं उठो तुम। आखिर क्या तकलीफ है तुम्हें? अपना सर कटवाना चाहते हो क्या तुम? क्या कोई मेरे साथ ऐसा कर सकता है बादशाह? किसमें जरूरत है? कोई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होने की दुआ मांगने वालों को एक मौका दे रहे हो तुम। अकल को जरा इस्तेमाल करो मुस्तफा। तुम्हारे सामने पापा नहीं, सुल्तान सुलेमान खान आली कदर है। बच्चे नहीं हो तुम आप। दौरे मासूमियत खत्म। एक शहजादे होने की वजह से तुम वली अहद नामजद हुए हो। तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी तमाम जिंदगी की जमानत है। इस वक्त किया जाने वाला फैसला तुम्हारी बात की जिंदगी का तयन करेगा। बाद अब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मलिका, क्या हुआ? शहजादे की कोई खबर है क्या? वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई मलिका, लेकिन इब्राहिम पाशा ने। क्या हुआ उसे? हरम में दाखिल होकर शहजादे के कमरे में चले गए अचानक। क्या? इब्राहिम पाशा वो कैसे आ सकता है हरम में? वल्लाह दाखिल हो गए, नौरा खातून ने यही बताया है। इब्राहिम उसे लेकर जाएगा यकीनन। बादशाह, शहजादे आए नहीं अभी तक। कोई बदमज़गी हुई है सुनने में आया है। वो अभी कल तो आए, हवाओं में उड़ रहे हैं शहजादे मुस्तफा। वाली साहब, हुक्म कीजिए आका। चलना है। आप फरमाएं तो शहजादे को देखा हूं मैं। जरूरत नहीं। जैसे आपका हुक्म। आका, माफी चाहता हूँ। वालिदा सुल्तान की दस्तबोसी के बगैर नहीं आना चाहता था मैं। आला, चले अब। नसूहा फंदी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको?
निगार खातून फौरन यहाँ आए। क्या इसका मतलब जानती हैं? मुझे लोग दलाल कह रहे हैं। इस घर में हराम काम हो रहा है, इसका मतलब ये है। मुझे ताना दिया गया है। मैंने क्या खुद लगाया है इसे अपने घर पर? आपसे पूछता हूं मैं, बताइए मुझे आखिर कौन सा गुनाह किया है मैंने? बताइए मुझे। ऐसे आंसू बहाकर मुझसे माफी मांगने की कोशिश मत करें। निसा खातून, नौरा खातून, क्या कर रही हो वहां? इधर आओ फौरन, कतार में लगो। नौरा नहीं है अब मेरा नाम, मुझे अब अफसू कहकर बुलाया जाए। किस लिए बदला? शहजादे ने रखा है मेरा नाम, मुसलमान हो चुकी हूँ। ऐसा है तो अफसू खातून, आप सब दरसगाह चले, जल्दी चलो। शाबाश। फातिमा, फीदान, कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? दाया खातून, वो मैं लाई हूँ दाया खातून। कोई मसला है क्या? हाँ बिल्कुल, किससे पूछकर लाई हो तुम इन्हें यहाँ? इन्हें सजा मिली थी। वालिदा सुल्तान ने हुक्म दिया था और मैं लेकर आ गई। अगर आपको कोई शिकायत है उसके लिए वालिदा सुल्तान से मिलना होगा। फातिमा खातून माहिदौरा सुल्तान की खिदमत में होंगी आज से, और फिदान खातून आज से हरम की कालफा होंगी, ये हुक्म दिया है। क्या वाकई जा रही हैं आप? जी हाँ, मुझे जाने की इजाजत आका ने आपके सामने ही तो दी थी। अल्लाह ने चाहा तो कल रवाना हो जाऊंगी मैं। कोई मजबूरी तो नहीं है ना? यानी जाना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल। ये क्यों पूछ रही हैं? मालूम नहीं, लेकिन मैं काफी अरसे से आपको परेशानी में देख रही हूँ, जैसे आप यहाँ से जाना ना चाहती हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं। मैं बाली साहब को खबर है क्या? मालूम नहीं, जानते ही होंगे। यकीनन वो बहुत उदास होंगे। किस लिए उदास होंगे? बाली साहब आपको पसंद करते हैं, मालूम है ना? आपकी खामोश मोहब्बत में गिरफ्तार हैं वो। कैसे? क्या उन्होंने खुद बताया आपको? ऐसी बातें कहीं नहीं जाती, और वो भी हरम में। अफसोस, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। चलिए खैर, अब मैं हम्माम जाऊंगी। आप जाना पसंद करेंगी? क्यों नहीं मलिका। वालिदा सुल्तान ने जरूरी तैयारी का हुक्म दिया है। कल आईबी खातून بڕۆم بۆ ئەوێ. خێرە سڵی بک؟ ئاگادار نین. گەورەمان ڕوخسەتی ڕۆیشتنیان بە ئایبی خاتوون داوە. ئامادەکاریشی بۆ کراوە، سبەی دەگەڕێتەوە. سبەی دەگەڕێتەوە بۆ شارەکەی خۆیان. وەی توخوا. ئەم شەو چیەکەیت؟ خواحافزی لە هەمووانەکەم. بالی خانش لەبیر نەکەیت. لانی کەم بۆ ئەوە دەبێ ماڵاوایەکی لێ بکەیت. ڕاستە، زۆر پێمەوە ماندوو بووە. بەڵام بەم شێوەیە مەچن. من خۆم جلێکتان بۆ دێنم.
پێویست ناکە من ئاوا ئاسوودەم گوێ بۆ قسەی من بگرە. कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत? वालिदा सुल्तान ने हुक्म देके बुलाया है, मैं क्या करूं? तुमने मुझे जलाया था, मलिका मुझे मारना चाहा था, वो तुम्हें थी। मलिका, मलिका खुदारा छोड़ दे। मलिका मत करे, छोड़ दे। मलिका ऐसा खुदारा लेके जाओ शिफा। दाया, क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे आ सकती है वो यहाँ? बहुत मुश्किल से जान छूटी है। इब्राहिम पाशा सलामत रहे, जाकर उन्हें जबरदस्ती कमरे से निकाल लाए। कोई चारा भी नहीं था, अच्छा किया। वालिदा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, तुम्हें याद नहीं? कुछ देर पहले कनीजों में से फातिमा और फिदान को देखा, उन्होंने कहा कि उन्हें आपने बुलाया है हरम में। क्या ये सच है? किसी और तरह उनका आना मुमकिन है क्या? ऐसा आप कैसे कर सकती है? जिसने मुझे जलाने की कोशिश की उसे हरम में बुला लिया। उनको तो सजा दी थी ना आपने। सजा पूरी हो गई हुरम, खत्म हो गई। फातिमा का सर काटने की जरूरत थी मगर हिफाजत की जा रही है उसकी। ऊपर से माहिदौरा सुल्तान की खात्मा मुकर्रर किया जा रहा है। लालाजार खातून की जुबान कटवाने वाली फिदान थी, उसे हरम की कारफा बनाया जा रहा है। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर ये आपकी आखिरी साजिश होगी वालिदा। ऐसा करके आप बर्बाद कर रही हैं खुद को। मलिका, शहजादे मुस्तफा ने नौरा को अफसू नाम दिया है। वो मुसलमान हो गई है। मेरे ख्याल से आज जब भी वो शहजादे के पास जाएगी। मुस्तफा भी ना तजर्बेकार है। एक औरत पर इस कदर फरेफ्ता होना मुनासिब नहीं। मेरी भी कुछ ऐसी ही राय है इस बारे में मलिका, इसी वजह से आपको आगाह कर दिया। जरा बुलाओ उस खातून को, देखती हूँ उसके जज्बे में कितनी गहराई है। आका, मुझे अपनी गुस्ताखी का एहसास है, माफी चाहता हूँ। मुझ पर गुस्सा करना आपका हक है। मुस्तफा, मुझे सिर्फ अपने दुश्मन पर गुस्सा आता है। तुम तो मेरी औलाद हो। मेरी नीयत आपके मुकाबले आने की न थी, और मैं ये भी इतराफ करता हूँ कि मैंने दुख पहुंचाया है आपको। मैं अपने उस रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। हर इंसान की जिंदगी में उम्मीदें, ख्वाहिशात और तवक्कुआत होती हैं, मैं मानता हूं। लेकिन गुस्सा करने से, नाराजगी से तुम्हें कभी दुख सुख का साथी नहीं मिल सकता। परेशानी में खामोश नहीं रहना चाहिए, अपने दुख को बोझ नहीं बनाना चाहिए, इजहार कर देना चाहिए। मैं हर लम्हा तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूं। चलो खेल खेलते हैं, बहुत सालों से नहीं खेला। नौरा खातून। नौरा मत कहना गुलशा खातून, अब मेरा नाम अफसू है। शहजादे ने रखा है ये नाम। अफसू? शुक्र है बस नाम रखा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुमने कैसा जादू किया है शहजादे पर मालूम नहीं। खैर छोड़ो इसे और चलो मेरे साथ। क्या हुआ, कहाँ ले जाओगी? माहिदौरा सुल्तान ने तुम्हें बुलवाया है, तुम्हें उनके पास चलना है। माहिदौरा सुल्तान ने बुलवाया है? क्या वजह है? कोई गुस्ताखी हुई क्या मुझसे? बहुत सवाल करती हो खातून।
तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो। जाओगी तो मालूम हो जाएगी वजह। इंतजार करवाकर गुस्सा मत दिलाओ मलिका को। गुलशन खातून, मुझे गालिबन मेरी जुबान तुम्हें समझ नहीं आती। चलो जल्दी, मेरा दिमाग और मत खराब करो अब। चलो। आका, आओ पार गली। शहजादे ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। आपको मात दी तो हैरत नहीं होगी। मुस्तफा दोबारा वियाना पर लश्कर कशी चाहता है। शाकलिन से उसका तख्त छीन लेना चाहिए, क्या ख्याल है? ले गरीबा दानिशत। मेहरबानी से किसी को तो तख्त का मालिक रहने दे। मगरिब की आखिरी सरहदों तक रसाई पा चुके हैं हम। दुनिया भर ने देख लिया है और समझ लिया है सिर्फ एक ही शहंशाह है और वो मैं हूं। अब मशरकी इलाका हमारा नया हदफ होगा। दियार अजम के शेर दिलों से हमारा झगड़ा कदीम है, खत्म नहीं हुआ अब तक। कदीम जमाने से हम दुश्मन हैं। जिस झगड़े को मेरे बाबा नहीं निपटा सके, मैं निपटाना चाहता हूं उसे। मेरे आका, माजरत से एक अर्ज करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में बहरुल कहल की दूसरी जानब चलते हैं। उस रास्ते से कदीम नवादरात और माली गनीमत से भरे बहरी जहाज गुजरते हैं। अगर हम निस्फ जहां के हुक्मरान हैं तो उस दौलत को भी हासिल करना चाहिए। क्या राय है मुस्तफा? आका, मैं इस फैसले से मुत्तफिक हूं। आप इब्राहिम पाशा के साथ मशरिक की तरफ जाएं, वहां फतूहात हासिल करें ताकि मशरिकी इलाका भी तुर्क सल्तनत में आ जाए। और मैं बहरुल काहिल का रुख करता हूं अपने बहरी बेड़ों के साथ। हम दो तरफ से दुनिया फतह करते हैं। मुझे देख रहे हो तो मैं यहाँ हूँ मालकूचू। आईबी के खातून, क्या लिबास अच्छा नहीं है मेरा? ये बिल्कुल भी नहीं आया मुझे पसंद। कैसा लगा तुम्हें? नहीं, बल्कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपको देखकर तो मैं दंग रह गया। अच्छा लगा ना? ये मैंने तुम्हारे लिए पहना है मालकोचू, क्योंकि मैं अलविदा कहने आई हूँ। मैं कल जानता हूं, खबर मिल गई। मुबारक हो, आखिरकार आका को मनाने में कामयाब हो ही गई। अच्छा हुआ ना, छूट गई जान तुम्हारी। ऐसा लगता है कि शहजादा उस कनीज का कुछ ज्यादा ही गर्विदा हो गया है। अगर नाम अफसून रखा है तो यही मतलब है। क्या करना चाहिए वालिदा? आपसे मशवरा लेना चाहती थी। उसे इब्तदाई में रोक लेना चाहिए माहिदौरा। शहजादे का मुस्तकबिल ज्यादा अहम है। एक मामूली कनीज को इतना सर चढ़ाने की हर किस इजाजत ना दो। मालूम ही है, हुरम भी ऐसे ही आई थी हमारी जिंदगी में। यकीन करें, मैं इसी वजह से खौफज़दा हूँ। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा इसके लिए। क्या तुम्हारे जहन में कुछ है? जी बिल्कुल वालिदा, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो। क्या है वो? क्या कुछ कहोगे नहीं? क्या कह सकता हूं मैं? आपका जाना ठीक है, मगर आपके जाने के बाद क्या होगा? अगर ये परेशानी है तो पुरसुकून रहो। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। आईबीके में कुछ भी नहीं करता बेखबर रहते हुए किसी भी अंजाम से। लेकिन वो एक गलती थी।
आपके ना चाहते हुए भी। कैसे समझ लिया कि मैं नहीं चाहती? खुदा हाफिज मालकोचू। शहजादी, आपने मुझे याद किया? आओ निगार, बैठो यहाँ। मैंने सुना है कि नसू आफंदी और तुम्हारे दरमियान कोई मसला चल रहा है। मालूम है तुम दोनों की शादी का फैसला मैंने किया, इसलिए किसी भी किस्म की परेशानी में, तकलीफ में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। बताओ मुझे क्या है मसला? शहजादी, मैं घबराओ नहीं निगार, बताओ। शहजादी, मैं कभी मां नहीं बन सकती। नसू अफंदी भी इसी वजह से मुस्तरब है। बहुत दुआएं मांगी, बहुत कोशिशें भी की हमने, मगर कोई हल ना निकल सका शहजादी। यार पिछले दिनों शिकार पर गया, वहाँ एक हिरनी पकड़ी। एक तरफ 3 सींग थे, दूसरी तरफ 5 सींग। ये बड़े बड़े सींग थे। ऐसी हिरनी फिर कभी नहीं देखी। हाँ क्या बकवास कर रहे हो बेगैरत तुम? जो कहना है मेरे सामने कहो ना। जा, ये झूठ नहीं क्या? رجاي مالي وركدو خوش تا مش راده بيري ما تسكين انت. दुखी ना हो निगार, मैं नसू आफंदी से बात करूंगी। सलामत रहे शहजादी। पाशा, मैं इजाजत चाहती हूँ। शहजादी, इस औरत का यहाँ क्या काम शहजादी? मैंने बुलाया था। नसू अफंदी और उसके दरमियान इख्तिलाफ का सुनकर मालूम करना चाहा। कुछ भी हो, हमने शादी करवाई थी, उनकी मदद भी करनी चाहिए। बच्चा नहीं हो रहा, ये है परेशानी की वजह।